ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد حسن جماله عید اور بقرہ عید کا بیان۔ عید الفطر کی نماز تو ہم لوگوں نے ادا کر لی ہے 2 مہینہ پہلے، کل ایک دن کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی۔ یاد رکھیے جو حکم عید الفطر کی ہے جو حکم عید الفطر کا ہے وہی حکم عید الاضحیٰ کا بھی، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز جیسی پڑھی جاتی ہے ویسی ہی عید الاضحیٰ کی بھی نماز، بس صرف نیت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اتنی بات فرق ہے۔ باقی جتنے بھی مستحبات یعنی جتنے بھی مستحب کام عید الفطر میں کیے جاتے ہیں وہ سارے کام عید الاضحیٰ میں بھی کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید اور بقرہ عید کی نماز جب بھی ہم پڑھنے جاتے ہیں تو اس دن کا حکم ہے کہ آپ اچھے سے نہا دھو لو، غسل کر لو، اس کے بعد نیا لباس پہنو۔ اگر نیا لباس نہیں ہے، پرانا ہے، تو اسے اچھے سے پاک و صاف کر لو، عطر لگاؤ، اچھی خوشبو لگاؤ، اچھی ٹوپی پہنو، عمامہ باندھ لو، سرما استعمال کر لو، اور اس دن کثرت سے تکبیر تشریق پڑھو، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب عیدگاہ جاؤ تو یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے ایک راستے سے جاؤ، اور جب نماز ادا کر لو تو دوسرے راستے سے یہی تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے کرو۔ اور ایک چیز ہے کہ عید کے دن کچھ بھی میٹھی چیز کھا کر کے، ہے کہ نہیں، عیدگاہ جانا یہ بھی مستحب ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں یعنی بقرہ عید کے دن کچھ نہ کھا کر کے عیدگاہ جا کر کے عید کی نماز ادا کر کے پھر واپس آ کر قربانی کر کے جانور قربان کر کے کھانا مستحب۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رہتا ہے، وہ روزہ نہیں ہے، اس کو روزہ نہیں کہتے، اس لیے کہ عید اور بقرہ عید کے دنوں میں ایام میں روزہ حرام ہے۔ تو بقرہ عید کے دن جب فجر کی نماز میں ہم اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بقرہ عید کی نماز کی تیاری کریں گے بغیر کچھ کھائے پیے، پھر عیدگاہ جا کر یا مسجد میں جا کر بقرہ عید کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد جب قربانی کر لیں گے تب جا کر کے کچھ نہ کچھ کھائیں گے، یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عید اور بقرہ عید کی نماز دونوں ایک ہی طرح ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو کتاب ہی میں ہے اور ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں آپ اسے محفوظ کریں۔ سوال: عید و بقرہ عید کی نماز واجب ہے یا سنت؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ عید اور بقرہ عید کی نماز واجب ہے یا سنت ہے کہ نہیں؟ عید اور بقرہ عید کی نماز واجب ہے، عید اور بقرہ عید کی نماز واجب ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی اگر پوچھے تو ذہن میں رکھیے گا عید اور بقرہ عید کی نماز واجب ہے، فرض نہیں، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور عید و بقرہ عید کے واجب اور جائز ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز فرض ہے۔ عید اور بقرہ عید کی نماز کے جائز ہونے کے لیے جو شرائط جمعہ کے ہیں وہی شرائط عید و بقرہ عید کے لیے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے، جمعہ میں جو خطبہ پڑھتے ہیں نا امام، جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ خطبہ پڑھنا جمعہ میں شرط ہے، اور عیدین میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے۔ نہیں سمجھے بات؟
जुमा के दिन जो खुतबा पढ़ा जाता है वो खुतबा पढ़ना शर्त है, और जुमा के अलावा जो ईद और बकरीद ईद की नमाज में जो खुतबा पढ़ा जाता है वो शर्त नहीं, सुन्नत है। लेकिन याद रखें, चाहे जुमा का खुतबा हो चाहे ईद और बकरीद का खुतबा हो, सुनना वाजिब है। क्या है? सुनना वाजिब है। खुतबे के वक्त बात करना जायज़ नहीं है। याद रखें, खुतबा जब पढ़ा जाए, चाहे जुमा का हो चाहे ईद और बकरीद का हो, सुनना वाजिब है। बहुत सारे लोग जुमा के खुतबा में फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, और आप लोग भी शरारत करते रहते हो। ऐसा कोई भी करे जायज़ नहीं है। बड़े बड़े नौजवान लड़के, हमारे बहुत मोहतरम बुजुर्गवार जो उम्र दराज लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो खुतबा के वक्त बात करने में मशगूल रहते हैं, खाते पीते हुए नजर आते हैं। जब दूसरा खुतबा चालू होता है तब जाकर के कुल्ली वगैरह करते हैं या वजू बनाते हैं, फिर नमाज पढ़ते। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। याद रखें, जुम्मा का खुतबा हो या ईद बकरीद का खुतबा हो, सुनना वाजिब है। दूसरा फर्क यह है कि जुम्मा का खुतबा नमाज से पहले है और ईदैन का खुतबा नमाज के बाद है। जुम्मा का खुतबा पहले होता है और ईद और बकरीद का खुतबा जो होता है वो नमाज के बाद है। ये दूसरा फर्क है जुम्मा में और ईद और बकरीद। तीसरा फर्क यह है कि ईदैन में अजान और इकामत नहीं है, ईद और बकरीद में अजान भी नहीं है, इकामत भी नहीं है कि नहीं? लेकिन जुमा में अजान भी है, इकामत। बात याद रहेगी। ईद और बकरीद के लिए अजान होती है? नहीं होती, इकामत भी नहीं होती। सब लोग हाजिर आ गए, जो टाइम मुकर्रर किया गया था ईद और बकरीद की नमाज के लिए, उसी टाइम पे नमाज खड़ी हो जाएगी, जमात खड़ी हो जाएगी। लेकिन जुमा के लिए अजान भी होती है, फिर सानी अजान भी होती है मस्जिद में या मस्जिद के बाहर, और फिर इकामत भी होती। ठीक है, ये फर्क, ये तीन फर्क है जुमा में और ईद और बकरीद। सवाल, ईद और बकरीद की नमाज का वक्त कब से कब तक है? अब बकरीद की नमाज हो या ईद की नमाज हो, बहुत सारे लोग फजर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू होता है अदा कर लेते हैं, और कभी कभी कैसा होता है कि कहीं कहीं लेट भी होती है कि नहीं? तो वक्त क्या है? जवाब, ईद और बकरीद की नमाज का वक्त एक नेज़ा आफताब बुलंद होने के बाद से ज़वाल के पहले तक। ज़वाल का टाइम जो दोपहर में आता है ना, 11 बजे के बाद जो ज़वाल का टाइम आता है उस वक्त तक है, यानी ज़वाल का टाइम शुरू होने से पहले तक है। ठीक है, और जो शुरू होता है वक्त वो सूरज निकलने के बाद से ही समझ लो शुरू हो जाए। सवाल, ईद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? इसको खास ख्याल करें आप लोग। ईद की जो नमाज पढ़ते हैं वो आम नमाज की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा फर्क है। कैसे? सबसे पहले तो नियत करेंगे। अब ईद और बकरीद की नमाज के लिए नियत करें आप, जैसा ईद उल अजहा की नमाज है तो आप नियत करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात वाजिब ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह। आई बात समझ में? अगर ईद उल फित्र की पढ़ रहे हैं तो ईद उल अजहा की जगह पे ईद उल फित्र की नमाज की नियत करेंगे। लेकिन नियत कैसे करेंगे? नियत की मैंने 2 रकात वाजिब ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह। आप अल्लाह अकबर कह करके इमाम के साथ हाथ बांध लेंगे। ठीक है, फिर सना पढ़ेंगे। सना सबको याद है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ लिए। अब जो हमने कहा ना कि 6 जायद तकबीरों के साथ, तो अब ये पहली रकअत में सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरें और कहना है। पहली रकअत में 3 तकबीर, फिर दूसरी रकअत में 3 तकबीर, वो भी बताए। सना पढ़ लिए नियत बांधने के बाद, सना पढ़ने के बाद अब 3 तकबीर कहना है, तो इमाम कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आप लोग भी हाथ उठाएंगे कानों तक, उसके बाद हाथों को छोड़ देंगे। फिर दूसरी बात अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर तीसरी बात अल्लाहु अकबर, इसके बाद हाथों को अब बांध लेना।
समझ गए बात? पहली तकबीर कह करके छोड़ देना है, दूसरी तकबीर कह करके छोड़ देना है, तीसरी तकबीर में हाथ बांध दे। अब इमाम साहब किरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई भी सूरह मिलाएंगे। उसके बाद इमाम साहब रुकू में जाएंगे, आखिरी रुकू में जाएंगे, फिर सजदा करेंगे। सजदा करने के बाद जब उठेंगे तो पहले इमाम अब किरात करेंगे, फिर से सूरह फातिहा, फिर उसके बाद कोई सूरह मिलाएंगे। अब जो 6 ज़ायद तकबीरें थी जिसमें हमने पहली रकअत में 3 तकबीरें कही, अब 3 तकबीर और कहना है। तो पहले सूरह फातिहा और सूरह मिलाने के बाद दूसरी रकअत में अब इमाम साहब फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, तो आप भी अल्लाह अकबर कहकर के हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर के हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर कहकर के हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ देंगे। अब चौथी तकबीर अल्लाह अकबर जो कहेंगे ना, तो हाथ उठाना नहीं है, चौथी तकबीर अल्लाह अकबर कह करके सीधा रुकू में जाना। आई बात समझ में? पहली रकअत में पहले नियत बांध लेंगे अल्लाह अकबर कह करके, फिर सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3 तकबीर कहेंगे, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम किरात करेंगे। किरात के बाद इमाम रुकू सजदा, फिर उसके बाद जब दूसरी रकअत के लिए खड़े होंगे तो इमाम किरात करेंगे, फिर उसके बाद 3 तकबीर कहना है, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, और चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि वो तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे। इस तरह 2 रकअत मुकम्मल। बात समझ में आई? ये अब 2 रकअत ईद उल अज़हा की नमाज या ईद उल फितर की नमाज आपकी अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ करके खत्म। जब 2 रकअत नमाज मुकम्मल हो जाए, सलाम फेर लेंगे आप। उसके बाद इमाम साहब अब ईदैन का खुतबा पढ़ेंगे। ईद का खुतबा है, ईद उल फितर का है तो ईद उल फितर का या ईद उल अज़हा का खुतबा पढ़ेंगे। खुतबा पढ़ने के बाद फिर दुआ होती है। दुआ होने के बाद समझ लीजिए अब नमाज मुकम्मल हो जाए। फिर ईद और बकरीद में आप सब लोग को अच्छी तरह पता है, जब नमाज भी हो जाए, खुतबा भी हो जाए, दुआ भी हो जाए, उम्मत मुस्लिमा के लिए पूरी दुआ हो जाए, उसके बाद दुआ ख़त्म होने के बाद एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान के साथ हाथ मिलाते हैं, मुसाफहा करते हैं, मुआनका करते हैं, यानी गले मिलते हैं। उस वक्त चाहिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, जब ईदगाह में हो या मस्जिद में हो, हर एक से अच्छे से खुलूस से और दिल से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ मिला रहे हैं, गले भी मिला रहे हैं, लेकिन दिल में भाई के लिए क्या रखें, दुश्मनी रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सीना से सीना मिला रहे हो, गले से गले मिला रहे हो, तो कम से कम दिल से दिल भी मिला लो। जो पुरानी दुश्मनी थी वो ख़त्म हो जाए और दोस्ती हो जाए और मुसलमानों के दरमियान इस तरह इत्तेहाद हो। इसलिए कि ईद और बकर ईद की नमाज का एक जो ख़ास मकसद है वो इसलिए भी है, वो ये भी है ताकि तमाम भाई जो हमारे इलाके के हैं ईदगाह में जमा हो जाएं, और जमा होने के बाद एक दूसरे के साथ सलाम, मुसाफहा, मुआनका कर। जो पिछले दिनों में हमारे दरमियान जो अनाकानी थी या जो कुछ भी क्या कहते हैं एक खलिश थी या दुश्मनी थी, वो सब ख़त्म हो जाए और फिर मुसलमान भाई भाई हो जाएं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू। ठीक है, तो आप हजरात याद रखें, आप सब बच्चे भी याद रखें कि नमाज का जो तरीका हमने बताया उस पर अमल करें, उसी हिसाब से नमाज को पढ़ें, और नियत जो मैंने बताया उस नियत को भी आप अच्छी तरह जहन में महफूज कर लें। हमारी वीडियोज़ को जो देखने वाले हमारे जो नाज़रीन किराम हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित है, ये वीडियो उनको साबित होगा। और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप वीडियोज़ देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर बकर ईद के बाद फिर आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रखूँगा। तब तक के लिए आज ये वीडियो लास्ट है। इंशाल्लाह फिर बकर ईद के बाद जो हमने सिलसिला शुरू किया है दीनियात का और अनवारी शरीयत का मुकम्मल करने का, इंशाल्लाह उसे ज़रूर पूरा करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की तमाम अच्छी बातों को अपनी बारगाह में कबूल करे और हम सबको इस्लामी शरीयत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।